Bonjour everyone. In today's class, we will be doing three forms of interrogation. How to convert a simple statement into a question in French. We've done this in English. You all know how to frame a question in English. For example, you can swim. Now, there is one way to say it in interrogative form is you can swim. Now see, I said you can swim. You can swim. Just by hearing the two sentences, you can identify that the second one is the question. The, the words are exactly the same. You can swim. Exact three words I'm using again. Now listen to me again. You can swim. You can swim. Now the second one, the way in which I am saying the sentence automatically makes it into a question. Second way, can you swim? Now, you can swim ki jagah, I am saying, can you swim? I just take the verb forward. I just take the verb before the subject of the sentence. You can swim. Can you swim? So this is another way. This way is what? What am I doing? I am inverting the placement of the verb. I am taking the verb and I'm putting it at the start of the sentence to make a sentence into a question. That's another way. And for example, another sentence, you speak English. That's a simple statement. If I have to convert it into a question, do you speak English? I just add the word do. अब do in this case is not doing anything specific. Do तो अपने आप में कोई काम नहीं कर रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है ना, लेकिन वो क्वेश्चन बनाने का काम कर रहा है. उसका अपना कोई अलग मीनिंग नहीं है, इनहेरेंट कोई मीनिंग नहीं है. वो सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए हमने मोडल वर्ब यूज किया है क्वेश्चन फॉर्मिंग के लिए. यू स्पीक इंग्लिश. डू यू स्पीक इंग्लिश? ठीक है ना. तो डू का यहाँ पे अपना कोई रोल नहीं है except for the fact that it is converting the sentence into a question. So same, these three ways will be followed in French also to convert a simple sentence into a question. Now, keep following me. I'm going to share the whiteboard. I'm sharing my screen. Just hold on. Now, this topic is known as three forms of interrogation. In some schools, they just teach two forms first. But the point is, जब सीख ही रहे हैं तो सारी सीख लें. So three forms of interrogation. ठीक है. इसमें क्वेश्चन बनता है mete a la form interrogative. ये क्वेश्चन बनता है. मेक इट इंटेरोगेटिव. ना प्लीज नोट, इसका क्वेश्चन थ्रूवेला क्वेश्चन नहीं होता. इसका क्वेश्चन होता है मेक इट इंटेरोगेटिव. मतलब सेंटेंस को क्वेश्चन में चेंज करना है, आंसर नहीं करना है. क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है. सेंटेंस जो आपको गिवन है उसको क्वेश्चन में चेंज करना है. सो द वेरी फर्स्ट वे, अभी समझ लो, फिर लिखने का आई गिव यू टाइम एंड आई शेयर दीज नोट्स ऑन द क्लास ऑल्सो. Class group, all these notes will be shared and the video will also be shared. Now, the first way is known as intonation. Intonation. अब हमने एक सैंपल सेंटेंस रख लिया. I'll just write the sample sentence. Vous parlez français. You speak French. ये हमारा सैंपल सेंटेंस है. अफर्मेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं. वो पार्ले फ्रांसे. ओके. अब इंटोनेशन. इंटोनेशन क्या है? टोन चेंज करके क्वेश्चन में चेंज कर देना. जैसे मैंने आपसे बोला यू स्पीक फ्रेंच को हम यू स्पीक फ्रेंच, यू कैन स्विम, सिर्फ टोन चेंज करके. तो इसको हम वर्बली यूज करते हैं. और जब हम इसको राइट डाउन करते हैं तो ऑब्वियसली कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन है? सेंटेंस तो सेम ही है. हम इसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे.
तो ये सेंटेंस आपका चेंज हो गया इंटेरोगेशन में. So far, so good. Sachi and Aditya, you following? Yes, ma'am. Okay. Yes. Now the next one is esk. Esk. Let me just write it down. Where did it go? Esk. एस्क का अपना कोई मीनिंग नहीं है. जैसे हम कहते हैं ना, डू यू स्पीक फ्रेंच, वही यहां पर हो रहा है एस्क. एस्क वो पार्ले फ्रांसे. अब ये जो है, जस्ट गिव मी दी एस्क फॉर्म. ये बिल्कुल जो हमने इंग्लिश में डू ऐड किया था ना, जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए लग रहा है, ये वही काम करता है हमारे फ्रेंच में. तो अब अगर मुझे वो पार्ले फ्रांसे को एस्क से क्वेश्चन बनाना होगा, तो मैं एस्क वो पार्ले फ्रांसे एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इट रिमेन्स एज इट इज. एस्क वो पार्ले फ्रांसे, डू यू स्पीक फ्रेंच. तो जो हमारा इंग्लिश में डू है, वो फ्रेंच में सॉर्ट ऑफ एस्क है. ठीक है. नाउ द थर्ड वन, थर्ड वे ऑफ चेंजिंग द सेम सेंटेंस. सेंटेंस कौन सा, जो ऊपर लिखा हुआ है वो पार्ले फ्रांसे. फर्स्ट वे क्या था, इंटोनेशन, टोन चेंज कर दी. सेकंड वे क्या है, आगे हमने एस्क लगा दिया. अब थर्ड वे है इनवर्जन. इनवर्जन में क्या करेंगे हम, वर्ब को आगे ले जाएंगे. जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, यू कैन स्विम, कैन यू स्विम. यू कैन की जगह कैन यू कर दिया, वर्ब को आगे ले गए. तो यहां पे हमारे पास वर्ब कौन सा था, पार्ले. The verb that we have in hand is parler. So parlez-vous français. जब भी वर्ब आगे जाता है सब्जेक्ट के, तो हमेशा हाइफन लगता है, ये बताने के लिए कि हमने गलती से नहीं लगाया, जानबूझ के लगाया है. सो दिस बिकम्स parlez-vous français. vous parlez français की जगह parlez-vous français. Are these 3 points clear? Let me sum up once more. There are 3 forms of interrogation. किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन में चेंज करने के लिए 3 तरीके होते हैं. एक होता है सिर्फ टोन चेंज कर दी, सेंटेंस वही बोला, टोन चेंज कर दी. वो पार्ले फ्रांसे, टोन चेंज कर दी. देन ऐड कर दिया उसमें हमने क्वेश्चन फॉर्मिंग वर्ड, जो कि फ्रेंच में है एस्क. अब अगर ये वॉवल से शुरू होता, इलेल होता, तो ये क्यू यू ई अपोस्ट्रोफ हो जाता. लेट मी राइट इट हियर सो दैट यू डोंट फॉरगेट. क्यू यू ई अपोस्ट्रोफी हो जाता है ये, अगर आगे वॉवल होता तो. ठीक है. तो एस्क वो पार्ले फ्रांसे, हमने एस्क लगा दिया सेंटेंस की शुरुआत में. एंड देन इनवर्जन. इनवर्जन मीन्स इन्वर्ट करना. इन्वर्ट हमने क्या किया है, वर्ब और सब्जेक्ट की पोजीशन को इन्वर्ट किया है, वर्ब को आगे ले गए. तो पार्ले वो फ्रांसे. And this sums up how we can convert any sentence into a question वाला sentence, an interrogative sentence. प्लीज नोट, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर दे रहा है. आप इसका क्वेश्चन होगा मेते आला फॉर्म एंटेरोगाटिव, मेक इट इंटेरोगेटिव. इसका क्वेश्चन थ्रू वेला क्वेश्चन नहीं होगा, इसका क्वेश्चन ऐसे होगा. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अभी शुरुआत में जब आप सीख रहे हो, तो ब्रैकेट में 1 2 3 लिखा होगा कि किस फॉर्म से चेंज करना है. सो द फर्स्ट फॉर्म इज इंटोनेशन, सेकंड इज एस्क, थर्ड इज इन्वर्जन. बस इतना सा ध्यान रखोगे तो आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी. Now, if in inversion the statement was il parle anglais, and you have to convert this into inverted question, तो हम इसको कैसे लिखते हैं. अगर ये होता तो il parle anglais, तो हम इसको जब नेगेशन में करते तो वर्ब को आगे लेके आते, parle il anglais. Now, point to be noted here, जब भी inversion में
दो वॉवल्स इकट्ठे आ जाते हैं इन्वर्ट करने पे, सिर्फ इन्वर्ट करने पे, तो हम यहाँ पे हाइफन टी हाइफन पार्थिल फ्रांसे, पार्थिल ओंगले ऐसे लिखते हैं। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोनाउंसिएशन। पारिल नहीं, मतलब इट डजंट साउंड नाइस, पारिल ओंगले, तो इट्स पार्थिल ओंगले। टी इसलिए लगाया है सिर्फ प्रोनाउंसिएशन क्लियर करने के लिए, ताकि पता चले कि यहाँ पे इन्वर्जन हो रही है और इन्वर्जन में दो वॉवल इकट्ठे आ रहे हैं। इसका कोई एज सच ग्रामेटिकल या कोई और मीनिंग नहीं है इनहेरेंट, दिस इज ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रोनाउंसिएशन। Now, another point that we have to add over here is negation. अब अगर negation में question बनाना हो तो अगर intonation वाला question था तो verb से पहले न और verb के बाद पा लगेगा। तो vous parlez français की जगह vous ne parlez pas français, vous ne parlez pas français। न पा लग गया वर्ब से पहले और वर्ब के बाद में, ये आपको आता ही है लगाना, राइट। देन अगर एस्क में होता तो भी सेम रूल था, एस्क वो न पार्ले पा। मैं इसको ओंगले कर रही हूँ क्योंकि बार बार फिर एक्सेंट लगाने में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैंने इसको ओंगले लिख दिया, वो न पार्ले पा ओंगले, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वर्ब से पहले न और वर्ब के बाद पा आता है। बट यहाँ पे जहां पे इन्वर्ट हो गया है, वहां पे कैसे करेंगे? जब इन्वर्ट हो जाता है ना, तो जो पूरा इन्वर्टेड सेंटेंस है उसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, वर्ब और सब्जेक्ट वाला जो इन्वर्ट हुआ है, वो पूरा का पूरा एक यूनिट काउंट होता है। अब वो वर्ब के साथ अटैच हो गया ये, जहां पे हाइफन लग गया ना राजे, मतलब अब ये अटैच्ड है, इनकी शादी हो गई, अब इनको तोड़ना नहीं है। तो अब न पा बिफोर द वर्ब यहां और यहां लगेगा, इनके बीच में कुछ नहीं आएगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे? वी विल पुट हियर न पार्ले वू पा ओंगले फ्रांसे, कुछ भी लिख सकते हो आप। इट इज जस्ट दैट कि उसमें हमें एक्सेंट लगाना है बार बार। न वू न पार्ले वू पा फ्रांसे, ये हमने क्यों किया यहाँ पे? क्योंकि जब इन्वर्ट हो गया तो ये एक यूनिट बन गई। अब अगर न पा लगाना है तो यहां न और यहां पा लगेगा। आई होप दिस इज क्लियर, दिस पोर्शन इज क्लियर टू एवरीवन। Let me Yes, just ma'am. share it on the class group also. And after this, we are going to do one more important question, which one more important part, not a question. Question तो भी बहुत सारे करने हैं. How to respond to these questions? तो वो हम इसी वीडियो में कर रहे हैं कि इसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। एंड वी रिस्पॉन्ड विद वी, नो या सी, एस आई। नाउ we is yes. We all know it. We means yes. No means no. No of French is no in English. But what is C? C is yes for a negative question. आपने हाँ बोलना है लेकिन क्वेश्चन नेगेटिव था। फॉर एग्जाम्पल आदित्य, मैं आपसे बोलूं क्या आपका नाम आदित्य नहीं है? Now you want to answer yes. मेरा नाम आदित्य है, तो you'll say si je m'appelle आदित्य। मैं बोलूं साची, don't you live in Delhi? So you say si j'habite à Delhi. So I asked you a negative question, लेकिन उसका आंसर आपने पॉजिटिवली देना था। Now such a word doesn't exist in English. ठीक है ना, हमारे पास yes या no होता है, बट फ्रेंच में दे आर वेरी स्मार्ट। उन्होंने एक वर्ड डिवाइस किया हुआ है कि अगर नेगेटिवली क्वेश्चन पूछा जाए तो पॉजिटिवली आंसर कैसे करना है। ठीक है, तो यहां पर प्लीज बी केयरफुल व्हेन यू डू इट। अब जैसे वो
न vous parlez français, vous parlez anglais। हमने हमारा जो क्वेश्चन था हम सेम लेके चल रहे हैं। तो इसका आंसर हो सकता है वी je parle anglais। इसका आंसर हो सकता है नो je ne parle pas anglais। बोथ आर करेक्ट। बट अगर क्वेश्चन होता vous ne parlez pas anglais, you don't speak English, अगर ये क्वेश्चन होता vous ne parlez pas anglais, तो या तो होता नो नो je ne parle pas anglais, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, या तो नेगेटिवली होता। लेकिन अगर इसका आपको पॉजिटिवली आंसर देना है तो आप ऐसे लिखोगे, यस नहीं लिखोगे, सी je parle anglais। Now, is this point clear? This is very, very important to understand क्योंकि ये बेस है आपके इंटेरोगेशन का, आगे चल के बहुत सारी चीजें इसके ऊपर बेस्ड होंगी। I hope this is clear, and this will sum up your three forms of interrogation and how to reply.